اس نے ان سے کہا تم خود ہی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا اب ہمیں گواہیوں کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔ وہ سب کے سب اٹھ کر یسوع کو پلاطس کے پاس لے گئے اور اس پر یہ کہہ کر الزام لگانا شروع کیا، ہم نے تحقیق کی کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ تب پلاطس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے۔ تب پلاطس نے سردار کاہنوں اور عوام سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا یہ تمام یہودا میں بلکہ جلیل سے لے کر یہاں تک ریت کو سکھا کر ابھارتا ہے۔ پلاطس نے یہ سن کر پوچھا کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے تو اس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں میں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا، کیونکہ وہ اس کا حال سن کر مدت سے شوق رکھتا تھا کہ اسے دیکھے، اور اسے امید بھی تھی کہ اس سے کوئی نشان سرزد ہوتا دیکھے، اور وہ اس سے بہت سی باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے بڑی شد و مت سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ تب ہیرودیس نے ماں اپنی فوج کے اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھے میں اڑایا، اور چمکیلی پوشاک پہنا کر اس کو پلاطس کے پاس واپس بھیج دیا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ اور پلاطس نے سردار کاہنوں، لشکری سرداروں اور عوام کو جمع کر کے ان سے کہا تم اس شخص کو میرے پاس یہ کہتے ہوئے لائے کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے تحقیقات کی ہیں، مگر ان الزاموں میں سے جو تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس شخص میں کچھ پایا اور نہ ہیرودیس ہی نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور دیکھو، اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوا کہ جس سے قتل کے لائق ٹھہرتا، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ اسے عید میں ضرور تھا کہ کسی کو لوگوں کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ اور بارابا کسی فساد کے لیے جو کہ شہر میں ہوا تھا اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا، مگر پلاطس نے اس ارادے سے کہ یسوع کو چھوڑ دے ان سے دوبارہ کہا، پر وہ یوں کہہ کر چلاتے رہے اسے صلیب پہ صلیب۔ تیسری بار اس نے ان سے کہا اس نے کیا بدی کی ہے؟ میں نے تو اس میں قتل کے لائق کوئی قصور نہیں پایا، اس لیے میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ چلا چلا کر اصرار کر کے طلب کرتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، اور ان کا چلانا کامیاب ہوا۔ تب پلاطس نے حکم دیا کہ ان کی خواہش کے مطابق کیا جائے، اور اس نے اس شخص کو چھوڑ کر جو فساد اور خون کی وجہ سے مقید تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا، یسوع کو ان کی مرضی کے حوالے کیا،
और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक केरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था और सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठाकर ले चले। लोगों का एक बड़ा हुजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थी उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिनमें कहेंगे मुबारक है वो बांझें और वो रहम जो बारावर ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुरा डाला और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल-मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और इब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू अल-मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अभी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ परदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई जो नवी घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी।
और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे होली थी, दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थी। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स था जो मशीर और मर्दे नेक और रास्त था और उनकी राय व अमल में शरीक नहीं हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा का था और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतार कर कतानी चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और जहां कभी कोई रखा ना गया था। वो तहैया का दिन था और सबत शुरू होने को था। और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थी, पीछे पीछे चली और उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई है। और लौटकर उन्होंने खुशबूदार चीजें और इतर तैयार किया और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सबत के दिन आराम किया। अंजीर मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, खुदा के प्यारों, ईमानदारों की सारी जमात आज से पूरी दुनिया के तमाम मसीह मोमिनीन पाक हफ्ते की खुसूसी इबादत का आगाज करते हैं। हमारी निजात का ये अजीम तरीन हफ्ता है जिसमें हमारी निजात के बड़े बड़े काम हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने सरअंजाम दिए हैं। इस सारे हफ्ते की इबादत जो है ये बड़ी फरमाइली है, बड़ी खास है, संजीदगी की तलबगार है, ईमान के साथ शामिल और शरीक होने की दावत देती है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने वाकई ही इतनी बड़ी तादाद में आज खुदावन के हुजूर जमा होकर इस बात की गवाही दी है कि आप पाक हफ्ते की इबादत से प्यार करते हैं। आप खास तौर पर इन पाक इबादत में शामिल होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं। आज के कलाम में हम इस बात पर गौर फिक्र करेंगे कि पाक हफ्ते की इबादत जो है हमसे क्या तकाजा करती हैं। अजीजों, आज खजूरों के इतवार की इबादत से हमने पाक हफ्ते की इबादत का आगाज किया है। खजूरों के इतवार को यीशु की अज़ियत का इतवार भी कहा जाता है। आज से यीशु की
अजियतों का तस्करा भी शुरू होता है, जैसे अभी हमने अंजील मुकद्दस में इसका बयान भी सुना है। अजीजों, आपने गौर किया है कि आज इस इबादत के दो खास हिस्से रहे हैं। जब इबादत गिरजाघर से शुरू हुई तो उस इबादत का मिजाज जो था वो बड़ा जारहाना, पुरजोश, खुशी, शादमानी से भरपूर था। नारे बुलंद किए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, तालियां लहराई जा रही थी, खुशी और शादमानी हमारे चेहरों पर थी और हम खुश होकर जुलूस में शामिल हो रहे थे। और जैसे ही तलावतों का आगाज हुआ, खुदा के कलाम की तलावतें पढ़ी जाने लगी, तो ये मिजाज जो है, जो खुशी शादमानी का मिजाज था, जो मालहाना और जारहाना मिजाज था, जिसमें खुशी और नारे बुलंद किए जा रहे थे, वो मिजाज एकदम यकसर तब्दील हो जाता है। फिर यीशु के दुखों का बयान पढ़ा जाता है, यीशु के दुखों का जिक्र किया जाता है, यीशु के दुखों का तज़किरा पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है। अजीजों, आज की इबादत के यही दो खूबसूरत रंग हैं। इंसानी जिंदगी के भी ये दो रंग हैं। इंसान कभी खुश होता है, शादमान होता है, खुशी मनाता है, खुशी के एहसास और शादमानी के एहसास से लबरेज होता है। और वो इंसान जो खुश होता है, शादमान होता है, उसी इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा ये भी आ जाता है कि वो दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, गमगीन भी होता है और बीमार भी होता है, तकलीफ भी उठाता है, दर्द भी महसूस करता है, अपने आप को कमजोर भी महसूस करता है। खुदावंद यीशु मसीह की जात के ये रंग जो हैं, ये रंग हमारी जिंदगी में भी बिखरे रहते हैं, बिखरे हुए हैं। हम खुश भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। यही जिंदगी की फितरत है, यही जिंदगी का मिजाज है। और आज हमने खुदावंद यीशु मसीह की जात और जिंदगी पर गौर करके इस बात को सीखा है कि जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर जिंदगी में खुशी है, शादमानी है, सुकून है, इत्मीनान है, तो ये हमेशा नहीं रहता। इसी जिंदगी में तकलीफ भी आ जाती है, इसी जिंदगी में गम भी आ जाता है, इसी जिंदगी में बीमारी भी आ जाती है, दर्द और तकलीफ भी आ जाता है। इसलिए जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन इस जिंदगी में हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा खुदा की तंजीद करनी चाहिए, हमेशा खुदा का जो है शुक्र अदा करके जिस हालत में भी हम जिंदगी बसर करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जो आज हमने जब गिरजाघर से इबादत का आगाज किया तो हमने तलावत के खजूरों के इतवार की तलावत, किस तरह यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ, किस तरह खूबसूरत
एहतमाम किया गया। खजूरों की टहनियां डालियां लहरा लहरा कर नारे बुलंद करके यीशु का पुरपटाख शानदार इस्तकबाल किया गया, नारे लगाए गए और यीशु को खुशामदीद कहा गया। अजीज़ों, खजूर की टहनी ये फतह की अलामत है, ये जीत की अलामत है, ये फतह की अलामत है, ये खुदा की कुदरत और शुक्रगुजारी की भी अलामत है। क्योंकि जब भी कुरान मुकद्दस में इसका जिक्र किया गया है, खास तौर पर मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में, जहां हर कबीले से, हर कौम से लोग सफेद जामे पहने खुदा और बर्रे के तख्त के सामने खड़े होंगे, तो खजूर की टहनियां उनके हाथों में होंगी, जो बर्रे की फतह की अलामत है, बर्रे की जीत की अलामत है, जो कामयाबी की अलामत है, जो बर्रे की फतह की अलामत है, जो बर्रे की सलीबी मौत पर, क़यामत पर फतह की अलामत है। इसीलिए खजूर की टहनी जो है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। अजीजों, खजूर की टहनी जो है, ये खुदावंद की हमद और सताइश की भी अलामत है। पहले मलूक की किताब में जब सुलेमान बादशाह ने हैकल तामीर की, तो हैकल के दरवाजों पर खजूर की टहनियों की तस्वीरें लगाई गई, कंधा किया गया, क्योंकि ये खुदा की तंजीद और शुक्रगुजारी की अलामत है। अजीजों, खजूर की टहनी हमेशा सरसब्ज और शादाब रहती है, इस पर कभी खजा नहीं आती। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की जात की अलामत है, जिस पर कभी खजा नहीं आती, जो कभी नहीं मुरझाता, जो हमेशा ताजा रहता है, वो मर कर भी जिंदा रहता है। इसलिए खजूर की टहनी जो है, वो ताजगी की अलामत है, हमेशा की अलामत है, जो हमेशा सरसब्ज और शादाब रहती है। अजीजों, आज हमने जब अंजीर मुकद्दस का बयान सुना, गिरजाघर में जो तलावत पढ़ी गई, जिसका जिक्र बाबूजी ने भी अपने तारफ में बयान किया कि जब खुदा यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर में दाखिल होने का फैसला और इरादा किया, तो अपने शागिर्दों को, 2 शागिर्दों को सामने वाले गांव में भेजा और उनसे कहा कि उस गांव में जाओ और वहां तुम एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, और अगर कोई पूछे तो उससे कहना कि ये मालिक को दरकार है। क्या है ये मालिक को? क्या है ये मालिक को? दरकार है। दरकार है। दरकार का मतलब है इसको, इसकी मालिक को जरूरत है, इसकी मालिक को जरूरत है। गधी का बच्चा जब तुम खोलोगे और अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो कहना कि ये मालिक को दरकार है। अजीजों, हम इस एक जुमले पर गौर और फिक्र करते हैं, इस एक बात पर गौर और फिक्र करते हैं कि आज के दौर में, इस वक्त में, आज की डेट पर, आज पाक हफ्ते के आगाज के मौके पर, आज पाक हफ्ते के वक्त ऐसे खूबसूरत पुरफसल बाबरकत वक्त से आज मालिक नू यीशु नू साडे कोलों की दरकार है, असी की पेश कर सकने, असी की दे सकने, जिदी मालिक नू जरूरत है, जेड़ा मालिक नू दरकार है, साडे को ऐसा की है
असी मालिक नूं पेश कर सकने हैं। साडे को की है जिसो साडे को की है मालिक नूं जिसो साडे को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गल दी कि असी मालिक नूं प्यार करिए, असी मालिक नूं अपना दिल दईए, असी मालिक लई अपनी ताबेदारी पेश करिए, असी मालिक लई अपनी अकीदत अपनी मोहब्बत पेश करिए। मालिक नूं अज दे दौर दे विच ए दरकार है। साडे कोलों मोमनीन कोलों पाक हफ्ते दे मोमनीन कोलों पाक हफ्ते दे दौरान खुदा साडे कोलों की मंगदा है, की तकाजा करदा है कि मालिक नूं असी की पेश कर सकने हां। जिसो अज जो यस्सु के दुखों का बयान पढ़िया जा रहा सी ते तुसी गौर किया कि पतरस शमौन पतरस जिदे लिए यस्सु ने दुआ मंगी, जिदे लिए ओदे ईमान दे मजबूती की दुआ भी मंगी, इख्तियार भी दिता, शगिर्दा से उच्चा नाम भी किया, रुतबा भी किया। पतरस जिदा यस्सु फड़िया गया, जिदा यस्सु गिरफ्तार हो गया, तो यस्सु नूं दूरों दूरों वेंदा सी, फासला रख के, डिस्टेंस रख के दूरों दूरों वेंदा सी, यस्सु नूं प्यार ते करदा सी, यस्सु नूं देखना ते चाहता सी, लेकिन दूरों दूरों वेंदा सी, दूरों दूरों। असीसो यस्सु नूं पाक हफ्ते दे विच ताकि अकीदत दरकार है, ताड़ा प्यार दरकार है, लेकिन ऐसा प्यार दरकार नहीं, दूरों दूरों फासला रख के प्यार दरकार नहीं। असी सो इंज हुंदा है जदों साडा कोई अजीज परेशानी च होवे, तकलीफ च होवे, बीमारी च होवे और तकलीफ च होवे, जिन्हों साडी जरूरत होवे, शायद कर्ज दे बोझ ते थल्ले टप्पिया होवे, शायद बीमार होवे, ते असीं दूरों दूरों वेंदे आ, दूरों दूरों फासला रख के वेंदे आ। ते अज खुदा दा कलाम इह कहंदा है कि ए फासला खत्म कर दो। अज खुदा इह चाहंदा है, इह खुदा नूं दरकार है कि असीं अपने भैण भरावां नूं जरूरतमंदां नूं दूरों दूरों ना वेखीए, दूरों दूरों ना वेखीए, फासला रख के ना वेखीए, अगे बढ़ के उन्होंने मदद करिए, अगे बढ़ के उन्होंने काम आइए, जितों तक मुमकिन हो सके उन्होंने काम आइए, ते फिर ही खुदा दे नाम नूं जलाले, फिर ही खुदा जिहड़ा है सानू बरकत देंदा है ते खुदा साडी जिहड़ी है जिंदगी नूं और ज्यादा पुरफसल ते बाबरकत बनांदा है। असीं जो गत समणी का जिक्र किया गया, गत समणी बाग का, ते खुदा नूं अज की दरकार है। इस वक्त ओदों खुदा नूं ओ गड्डी दा बच्चा दरकार सी, मालिक नूं दरकार सी, ना दे दिता गत समणी बाग च यस्सु अल मसीह नूं की दरकार सी। यस्सु बार बार शिगिर्दां को जांदा है, बार बार जांदा है, सुत्तियां नूं उठांदा है, सुत्तियां नूं उठांदा है, बार बार जांदा है, ते उन्हां नूं कहंदा है कि तुसीं एक घड़ी भी मेरे नाल ना जाग सके। अजीजो यस्सु नूं पाक हफ्ते च यस्सु दे नाल जागना दरकार है। अपने खानदानां च, अपने घराणियां च, अपनी बस्तियां च, अपने माशरे च, अपने घरां दे विच अज खुदा नूं की दरकार है। असीं जागीए ते दुआ करिए, जागीए ते दुआ करिए। अजीजो पूरे पाक रोज़ियां दे विच दुआ दी दावत दी गई, दुआ लई आख्या गया ते रोज़े गुजर जा रहे ने। आखिरी हफ्ता पाक हफ्ता रह गया, पाक हफ्ता रह गया, ते पाक हफ्ते दा तकाजा है कि असीं खुदावंद यीशु मसीह दे नाल जागीए,
मोमनीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को खुदा नू अज ये दरकार है कि दुआ करिए रोज़ियां दे विच, खास तौर पे पाक हफ्ते दी इस इबादत दे दौरान जेड़ा है खुदा दे वास्ते अपने सिरां झुकाइए ते दुआ करिए ताकि खुदा सानू बरकत दे ते खुदा साडे नाल होवे। अजीजो, खानदानां दे विच, घरानियां दे विच खुदा नू अज की दरकार है। अजीजो, अज के दौर दे विच ना खानदानां च ते घरानियां च तुसीं मेरे नाल एग्री करोगे कि सब नू ज्यादा जिन्नू किसे प्यार दी ते ताल्लुक दी ते वक्त दी जरूरत है वो साडे बुजुर्ग वालिदैन ने, साडे बुजुर्ग वालिदैन, साडे बुजुर्ग वालिदैन। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, असी अपनी जेरी एक दुनिया वसाई हुई है ते असी अपने बुजुर्गों को बिल्कुल भुला देने, ना उन्होंने गलबात करने, ना उन्होंने कोई बैठने, ना उन्होंने हाल पूछने, ना उन्होंने खैर पूछने, अपने मोबाइल से अपने दोस्तों के विच मगन रहने। ते आज पाक हफ्ते का तकाजा है, आज खुदा ये चाहता है, आज खुदा नू ये दरकार है कि अपने मां प्यो को बैठो, अपने मां प्यो को बैठो, उन्होंने सुनो, उन्होंने सुनो। ते अज की नौजवान नस्ल जी है ना मां प्यो की सुनने लिए भी तैयार नहीं है। कई दफा मां प्यो नू, बुजुर्ग मां प्यो नू ते यही कह दिता जाता है कि अब्बा तेनू कोई पता नहीं, अम्मी तेनू कोई पता नहीं, असी जानते हैं, सानू सारा पता है। अजीजो, अज के दौर च खुदा नू मां प्यो लई ये दरकार है बच्चों को कि अपने मां प्यो की दुआओं नू सुनो, अपने मां प्यो के कोल बैठो, अपने मां प्यो का सहारा बनो, उन्होंने गलबात सुनो, उन्होंने गुफ्तगू करो। नौजवानों मैं कहना, नौजवान बेटियां, नौजवान बेटियां, नौजवान धिया पुत्रों मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा ने तुहानू अकल दी है, खुदा ने तुहानू जवानी दी है, ताकत ते कुवत दी है। अपनी ताकत ते कुवत जेड़ी है, अपनी अकल जेड़ी है खुदा दे कमां लई इस्तेमाल करो, ए खुदा नू दरकार है। अज दे दौर च खुदा नू तुहाडे कोलों ए दरकार है कि तुसी अपनी अकल, अपनी ताकत ते अपनी कुवत जेड़ी है खुदा दे कमां वास्ते इस्तेमाल करो। अजीजो, शादीशुदा जोड़ियां अज़वाजी जिंदगी च जेड़े जोड़े ने, जेड़े शादीशुदा जिंदगी गुजारते ने, खुदा आज के दौर च उन्हां को की मंगदा है, की दरकार है। अजीजो, एक दूजे दे नाल वफादारी खुदा मंगदा है। खुदा आज पाक हफ्ते दे विच एक दूसरे को, शादीशुदा जोड़े को, मियां बीवी को एक दूजे लई की दरकार है, एक दूजे लई वफादारी दरकार है, दुख ते सुख च साथ देना दरकार है। खुदा साडे को की मांगदा है। उस मालिक ने, गधी दे बच्चे दे मालिक ने यसू के शागिर्दां नाल कोई सवाल जवाब नहीं किया ते उन्हें अपना जानवर जिहड़ा है यसू की खिदमत च पेश कर दिता। यसू साडे को अज की मांगदा है। अजीजो, तुसी जानते हो, हर कोई जानता है, जेड़ा भी मेरी आवाज सुन रहा है ओ पीछे स्कूल तक तुसी अगर अपने दिल से अखा बंद करके झांको ते नजर करो तो तुहानू पता चल जाएगा कि आज भी खुदा तुहाडे कोलों की मंगदा है, खुदा नू की दरकार है, तुहानू भी पता चल जाएगा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, दाऊद के बेटे की, दाऊद के बेटे की।
ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਕੇ ਸਲੀਬ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਕਰ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕਰ ਤਿਲ ਖਾ ਕਰ ਇਹਨੇ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਯਿਸੂ ਤੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇਸ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਾਨ ਗਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਫਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ आमीन। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ, दौलत के बेटे को मुकद्दसा मरियम की। हम सब बैठे रहेंगे और हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा पाक मुतलक आप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से झूठा आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा मुर्दों की दौलत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के झूठने
और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आए बाप जी की रहनुमाई में हम अपनी अर्जियां और मुनाजातें खुदावंद के हजूर पेश करें। हम आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदावंद आलमगीर कलीसिया को अपनी बरकत से नवाजे, जिसने आज के इस मुबारक दिन के साथ पाक हफ्ते का आगाज किया है। आलमगीर कलीसिया इस पाक हफ्ते में अपनी